بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جزاک اللہ احسن الجزاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. محترم حضرات و خواتین، اس پروگرام کی آخری کڑی سوال و جواب کی نشست ہے. جیسے کہ پہلے کہا گیا تھا کہ عورتیں اپنے سوالات پرچیوں کے ذریعے یہاں پر بھیجیں اور مرد حضرات کے لیے جو ہے میک نصب کیا گیا ہے، وہاں پر جو ہے آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑا نادر اور بڑا زرین موقع ہے کہ استاذ الاساتذہ شیخ انیس الرحمن صاحب حفظہ اللہ ہمارے ہاں موجود ہیں. آپ جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سوالات کو شیخ کے سامنے رکھیں. السلام علیکم. سوالات کئی قسم کے ہوتے ہیں. جو نہیں جانتے ہیں، جو معلوم کرنا چاہتے ہیں، وہ سوال انسان کو کرنا چاہیے. جو معلوم ہے وہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ اس کو پیش کیجئے، آپ اس کا جواب مانگیے. ہمارا جو مخالف ہے اس کے متعلق آپ سوال کر کے اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صاحب مولوی صاحب کتنے پانی میں اس کو دیکھا جائے، اس لیے بھی سوال کرتے ہیں. میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، جانکار نہیں ہوں. جو باتیں مجھے معلوم ہوں گی ان کا جواب دوں گا، جو نہیں معلوم ہوں گے میں بتاؤں صاحب اس کا جواب تو مجھے خود نہیں معلوم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 سوال کیے تو 36 سوال کے متعلق کہا مجھے نہیں معلوم، جی مجھے نہیں معلوم. کہا اتنے بڑے عالم، میں افریقہ سے آیا ہوں آپ سے سوال کرنے کے لیے، وہاں کے لوگ بھیجے ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر جواب نہیں دے رہے ہیں. کہا بھئی دیکھو، علم کی امانت ہے، جو جانتے ہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے بولنا چاہیے. لہٰذا میں جو نہیں سمجھو میں سب کچھ جانتا ہوں. لہٰذا میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ سوال صرف اپنے کیجئے، اپنے فائدے کے لیے کیجئے. جو باتیں معلوم نہیں ہیں ان کو جاننے کے لیے سوال کیجئے. یہ نہ کیجئے 6 مولوی صاحب سے ہم نے سوال کیا، 3 بولے جائز، 2 بولے ناجائز، اب ان سے بھی کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا بہت ہوتا ہے کہ صاحب لوگ سوال کرتے ہیں، جو ایک سوال کوئی بھی ہو نا، ایک سوال ضرور آئے گا کوئی نہ کوئی، وہ سوال ہمیشہ ریپیٹ ہوتا رہے گا. ایسا نہ کریں. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ سوالات کریں. اگر مجھے معلوم ہے تو بتاؤں گا، اگر نہیں معلوم ہے تو پھر میں جواب سے معذور ہوں. کوئی آدمی کسی بستی میں مسلمان انتقال ہو گیا. اب اس کے رشتہ دار، جان پہچان کے لوگ، اس کے شاگرد وغیرہ دوسری بستی میں رہتے ہیں. اب اس میت کو ثواب پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ اس کی نماز جنازہ ہے کہ وہاں کے لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں. اب جہاں نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے وہاں تو ٹھیک، دوسری بستیوں میں غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ عام طور پر اہل حدیثوں کا معمول ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں. عام طور پر ایسا ہے. لیکن ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس کا ثبوت صرف نجاشی کے انتقال کے موقع پر، اسحمہ کے انتقال کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. باقی کسی اور کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھائی. صحابہ کرام کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، کتنے لوگوں کا انتقال ہوا. کہیں بھی ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے.
मक्के में मदीने में इंतकाल हुआ, मक्के के लोग पढ़े हों उनके नमाज जनाजा, ऐसे सबूत नहीं है। समझ में यूँ आता है कि जिस मुसलमान की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई, जैसा कि असहामा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई, उनकी नमाज जनाजा हम पढ़ें। जिनकी पढ़ ली गई है उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, यही सही मालूम होता है। नमाज जनाजा गायबाना पढ़ने का सबूत इसके अलावा हदीस में हमको नहीं मिलता है। ये इख्तिलाफ बहुत सारे पुराने ज़माने से लोगों के दरमियान है, लेकिन हम जो मसला राजे समझते हैं वो यही है कि जिनकी नहीं पढ़ी गई उनकी पढ़नी चाहिए, जिनकी पढ़ लिए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए, इसका ख्याल करना चाहिए। मेरे पास इसका जवाब यही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछने से क़बल मैं इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये मेरा सवाल यहाँ पर मौजूद किसी भाई का दिल दुखाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है कि हमारे बहुत से भाई स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, और वो इस पाक हवा में धुआं छोड़ते हैं और इससे हवा आलूदा हो जाती है। क्या इनका ये अमल गुनाह का बाइस बन सकता है? सवाल का एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा ये है कि हमारे बहुत से भाई जानते हुए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या हिदायत है? आप मुफस्सल बयान करें। कुरान मजीद में एक आयत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की गई हैं। सूरह आराफ में है, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। ये प्यारे नबी मुसलमानों को, इंसानों को हर नुकसानदेह चीज़ से बचाते हैं और उनके नुकसान को बयान करते हैं, हराम करार देते हैं। तो लिहाजा दुनिया का इत्तिफाक़ है कि स्मोकिंग के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। इसीलिए सिगरेट के अंदर लिखना ज़रूरी है कि ये सिगरेट स्मोकिंग धुआं है ना, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। उसके बग़ैर दुनिया में सिगरेट बना ही नहीं सकता कोई। उसके अंदर वो नारा लिखना उसके लिए ज़रूरी है। किसी ज़माने में उलमा फतवा देते थे कि स्मोकिंग हराम है, नाजायज़ है। अब वो अडवाणी जी हों या लाल कृष्ण वाजपेयी हों और साहब वो हमारे यहाँ के वज़ीर आला येडियुरप्पा साहब हों, सब कहते हैं साहब नहीं, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, नहीं करना, सरकारी जगह में नहीं करना, पब्लिक प्लेस में नहीं करना, फुला जगह नहीं करना। सब अब तो हराम होने पर दुनिया के लोग मुत्तफ़िक़ हो गए। वैसे भी माहौल को पाक साफ रखना ये इंसान के लिए ज़रूरी है। मैंने अपने तकरीर के दौरान ही कहा था कि अगर कोई पड़ोसी आपका बैठा है ट्रेन में, बस में, सिगरेट बीड़ी का आदी नहीं है, उसके सामने बाजू बैठकर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उससे तकलीफ़ पहुंचाना हुआ। मैंने उसी मौके पर कहा, यह ना समझें कि दूसरे टाइम में स्मोकिंग जायज़ है। उलमा का फतवा है स्मोकिंग हराम है, नाजायज़ है, उससे पैदा होने वाले नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा वर्ल्ड बैंक से इंडिया के लिए जो कर्ज़ मंजूर हुआ है इसी शर्त पर है कि आइंदा 3 साल के अंदर स्मोकिंग को इंडिया से ख़त्म किया जाएगा। इसलिए कोशिश की जाती है कि साहब इश्तिहार के ज़रिए, उसके ज़रिए, इसके ज़रिए किसी तरह इस स्मोकिंग की बीमारी को ख़त्म किया जाए। लिहाजा एक मुसलमान के लिए ऐसी बुरी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। बीड़ी के ताजिर आम तौर पर बहुत सारे मुसलमान हैं, अफसोस होता है। अल्लाह ने रोज़ी कमाने के बहुत से तरीक़े रखे हैं, हलाल तरीक़े को इख्तियार करना चाहिए, हराम तरीक़े को छोड़ देना चाहिए। ये भी नहीं हो सकता कि आप अपनी दुकान में बीड़ी सिगरेट रखें, मैं भी मुसलमान को नहीं बेचता, मैं जो गैर मुस्लिम आता उसको बेचता हूँ। अरे जो चीज़ ख़राब है वो मुसलमान को बेचो, गैर मुस्लिम को बेचो, हराम है। लिहाजा उसकी तिजारत करना, कारोबार करना भी नाजायज़ है, इसको याद रखना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे कि लोग ऐसे कारोबार से तौबा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शेख, आप ये कह रहे थे कि उस हदीस में जो वाक़या आया था, जो औरत कुत्ते को पानी पिला रही थी, क्या उससे ये हमको मालूम होता है कि सिर्फ कुत्ता पालना हराम है, उसके अलावा कुत्ते को मतलब अगर घर के बाहर ही रख के उसे खिलाए या तो उससे खेले, क्या ये जायज़ है? उसे छूने में क्या हर्ज है शेख? कुत्ता
इस्लाम की निगाहों में एक मुज़िर जानवर है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये बीमारी आप जानते हैं, कुत्ता अगर पागल हो गया, जिस आदमी को काटता है वो आदमी भी कुत्ता बन जाता है, वो आदमी किसी आदमी को काटे तो वो भी कुत्ता बन जाता है, वो आदमी किसी और आदमी को काटे तो वो भी कुत्ता बन जाता है। कुत्ता क्या बन जाता है? भौंकता है, पानी 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 पानी, तड़पता है, नज़दीक लगे तो मुंह बंद कर लेता है, पानी नहीं पीता है, उसके अंदर जहर इतना होता है। तो लिहाजा पागल कुत्ते के इस जहर की वजह से भी और भी मसलिहतें होंगी। अरब के लोग कुत्तों से ऐसी मोहब्बत करते थे जैसा कि आज यूरोप के लोग कुत्तों से मोहब्बत करते हैं। मरते वक्त वसीयत करके जाते हैं कि मेरी पूरी जायदाद मेरे कुत्ते के लिए है, नाउज़ुबिल्लाह। इस मोहब्बत को कम करने के लिए, कुत्ते के नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, कुत्ता अगर मुंह में पानी डाल दे, पूरे पानी को गिरा दो, बहा दो, 7 मरतबे बर्तन को धो, 1 मरतबे मिट्टी से मलकर धोना चाहिए। तो कुत्ते के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आई। कुरान कहता है कुत्ता जो शिकार करे वो शिकार तुम्हारे लिए जायज़ है, लेकिन कुत्ते को आदाब बताना, बिस्मिल्लाह करे, फलां करे, छोड़े तो जाए, पकड़े, और जब मना करे तो रुक जाए, कुत्ते का शिकार जायज़ है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुत्ता पालता है उसका मकसद है जानवरों की हिफाजत या ये कि शिकार, ठीक जायज़ है। जानवरों की हिफाजत क्या? 200-400 बकरियां हैं, घर को आते वक्त एक बकरी उधर जाती है, किधर जाती है, कुत्ता रहता है सबको खींच के ले आता है, उसके अंदर उतना सलीका है। कोई बकरी इधर जाती है तो भौंकता है तो बकरी आकर फिर मर जाती है। बकरियों की हिफाजत के लिए, खेत और बाग की हिफाजत के लिए, 10 एकड़ में उसका बाग है, कौन चोर आएगा, कहाँ आम चुराएगा उसको क्या मालूम। कुत्ता 10 किलोमीटर दूर से उसकी बू सूंघ लेता है, नया आदमी भौंकता है, चोर भाग जाता है। ये बिल्कुल तजुर्बा है। कुत्ते के अंदर फ़ायदे इतने हैं। आज सबसे ज़्यादा कुत्ते की कीमत हो गई टेररिस्टों को, बम वालों को पकड़ने के लिए। तो लिहाजा आप खेत की हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए, शिकार के लिए कुत्ता पाल सकते हैं। अब वो जो प्यारे नबी ने कहा बाग की हिफाजत, बहुत सारे बड़े फ्लैट भी हैं, बहुत सारे घर भी हैं, आदमी अगर उनको बाहर रख के कुत्ते को पालता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको माफ़ करेगा। बग़ैर ज़रूरत के फैशन के लिए जो लोग कुत्ते को पालते हैं, ये खुद पहाड़ के बराबर उनका सवाब रोज़ाना कम होते जाएगा। करते ही हम लोग एक चट्टान के बराबर सवाब का काम, और ये खुद पहाड़ के बराबर सवाब कम होगा तो फिर हमारा क्या होगा भाई। तो लिहाजा कुत्ता इंतहाई शदीद ज़रूरत के लिए, यह कि साहब हुकूमतें कुत्ते को पाल सकती हैं। बहुत सारे लोग अफीम टायर में ट्यूब में रख कर ले आते हैं, कोई पकड़ नहीं सकता उसको, कुत्ता सूंघ के पकड़ता है। इसलिए हुकूमतें पालती हैं कुत्ते को ऐसे चीज़ों को पकड़ने के लिए। ज़रूरत भी तो ज़रूरत के लिए, इंतहाई शरीर ज़रूरत के लिए कोई कुत्ता पालता है तो ठीक है, वरना फैशन के लिए पालना ये इंतहाई नाजायज़ है। कुत्ते का चमड़ा लग गया, कुत्ते से टकरा गए, कुत्ता आपके कपड़े को छू गया, उससे आपके कपड़े गंदे नहीं होते। कुत्ते को ऊपर आपने हाथ फेर दिया तो आपका हाथ उसकी वजह से गंदा नहीं होता, वज़ू नहीं टूटता। अस्सलाम वालेकुम। एक नाबीना के मुतल्लिक़ मैंने कहा कि इस्लाम जो रफ़ाही खिदमत अंजाम देता बताता है, उसमें यह भी है कि जिसकी निगाह कमज़ोर हो उसको तुम रास्ता बता दो। अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक आदमी नाबीना है या माज़ूर किस्म का आदमी है, उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, ये खातून है, वो खातून उसको हाथ पकड़ के ले जाके पहुंचा सकती है क्या? हाँ पहुंचा सकती है। हाथ के ऊपर कपड़ा रख ले और उसको ले जाकर पकड़े, डायरेक्ट उसके हाथ ना पकड़े, हाथ अपने बुरक़े से, साड़ी से, कुछ भी हो, पकड़ के ले जाकर उसको पहुंचा सकती है। मजबूर की खिदमत ऐसे की जा सकती है, हराम नहीं है। और ज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात, ज़रूरत जब पड़ती है तो हराम चीज़ हलाल हो जाती है। आदमी सुअर का गोश्त नहीं खा सकता, मर जान बचाने के लिए खा सकता है। इस तरह बाज़ चीज़ों के अंदर ये सहूलत रखी गई है। औरत भी इस तरह की खिदमत अंजाम दे सकती है। और उसी तरह औरत है, उसको पहुंचाने के लिए मर्द उसका हाथ पकड़ के सड़क पार करा सकता है। लेकिन हमने कहा कपड़े के आड़ से पकड़े तो अच्छा है। जी, कोई सवाल वहाँ कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। सुना है कि सूरज के उजाले में जो पानी गर्म होता है उसमें हमाम करना जायज़ नहीं, तो इस सूरत में क्या
سولر ہیٹر یا سولر کوکر بھی یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب حدیث آئی، لیکن وہ حدیث محدثین کے پاس ضعیف، کمزور، ویک ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا جو آدمی کے سورج کی تپش گرمی سے گرم شدہ پانی سے نہائے گا اس کو برس کی بیماری آئے گی، اور برس کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ داغ، چمڑا سفید ہو جاتا ہے، سفید بیماری، پھول جھڑی کی بیماری جس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث محدثین کے پاس کمزور ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، لہٰذا تجربے کو دیکھا جائے گا۔ تجربہ، اگر کسی کو ایسا تجربہ ہوا ہے گرم پانی کے نہانے سے اس کے جلد کی بیماری آ گئی، چمڑے کی بیماری آ گئی، تو ہم کہیں گے کہ صاحب اس کا پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہاں دین کے ساتھ تجربہ آ گیا، دین نے تو ہم کو کوئی بات نہیں بتائی، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اور انسان کے لیے ہر نقصان دہ چیز سے بچنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر سولر کا پانی گرم ہوتا ہے، وہ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کوئی بیماری آپ کو نہیں ہوتی ہے تو آپ استعمال کیجئے۔ اگر سائنس یہ بتائے کہ اس کے نہانے سے اتنے نقصانات ہیں، اتنے جو ہے بیماریاں ہیں، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ تجربے کی بنیاد پر عقیدہ درست ہو کہ بیماری اللہ ہی دیتا ہے، اسی کی وجہ سے آتی ہے، بیماری جاتی بھی اللہ ہی کو حکم سے، یہ عقیدہ۔ لیکن سبب بنتا ہے سورج، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم دین سے ہٹ کے تجربے کی طرف آتے ہیں۔ اگر تجربہ ثابت کرے کہ یہ کا پانی نقصان دہ ہے تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ تو آدمی استعمال کرے۔ حدیث میں جو آیا ہے وہ ضعیف حدیث ہے۔ یہ صاحب کہتے ہیں تبت یدا ابو لہب کی سورہ نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تو بددعا ہے کہ سب ابو لہب مر کے جائے۔ اب ان کو چاہیے کہ شیطان کے لیے بھی کبھی نہ پڑھے، شیطان کا ذکر آئے تو فوراً کھڑے ہو جائے۔ صاحب شیطان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعنہ اللہ قرآن میں آیا، اللہ اس پر لعنت کرے۔ تو ان کو چاہیے کہ صاحب قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے نام شیطان کا، ابو لہب کا، ابو جہل کا، وہ سب نکال دیں، نکال کے پھر ایک نیا قرآن ایڈٹ کریں، جب چل کر ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ہاں عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے شوہر کا نام نہیں لیتے، اور سمجھتے ہیں کہ شوہر کا نام لیے تو نکاح ٹوٹ جاتا، اس لیے مرد کا نام نہیں لینا۔ ایک بیماری، ایک بیچاری کی شادی ہوئی، اس کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، اب 2 رکعت نماز پڑھی، اب سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم، اب رحمت اللہ بولے تو نکاح ٹوٹ جاتا۔ بڑی پریشان، یا اللہ میں کیا کروں، رحمت اللہ اس میں ہے۔ بعد میں بولی السلام علیکم منع کے ابا، السلام علیکم منع کے ابا۔ تو ایسے شیطان کا نام آنے سے مسد میں ابو جہل پر بددعا آنے سے صاحب کیا نکال کر پھینک دیں گے؟ ایک مولوی صاحب تھے، جلد بناتے تھے کتابوں کی، ایک مولوی صاحب لے جا کے قرآن دیے، حضرت آپ کو معلوم، آپ کے متعلق معلوم ہوا کہ آپ کوئی بھی کتاب جلد بنانے دیے تو پہلے پڑھ لیتے، پڑھ کر جو ہے اس کے بعد اسے ٹھیک کرتے، کہاں کہاں غلطی ہے وہ سب ٹھیک کر دیتے۔ حضرت اللہ کا کلام مہربانی کر کے پڑھو مت، جلد بنا کے دو، ارے اللہ کا کلام میں جانتا ہوں، اس میں کیا جی اصلاح کریں گے، ایسے نہیں کروں گا میں، لاؤ۔ گئے 3 دن کے بعد، حضرت قرآن کو کیا بھی کرے نہیں نا، کیا جی اللہ کی کتاب کو کون تو کیا تو کرتا، کیا غلط نامہ تھے نا، ان کی جگہ سب تمہارا نام لکھ ڈالیا، فرعون تھا تمہارا نام لکھ ڈالیا، شیطان تھا تمہارا نام لکھ ڈالیا، ابو لہب تھا تمہارا نام لکھ ڈالیا، اور اس طرح انہوں نے بنایا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ جو قرآن میں آیت نازل کیا وہ نماز میں بھی پڑھیں گے، دوسری اس میں بھی پڑھیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ نماز میں بددعا جائز نہیں ہے۔ پیارے رسول تو کئی دن تک مکے کے کافروں کے لیے بددعا کیے، اللہ فلاں قبیلے کو تباہ کر، فلاں قبیلے کو تباہ کر، دعا کیے، دعائے قنوت کیے۔ اللہ نے کہا نام نہیں لینا، نام لیے بغیر ظالموں کو تباہ کر، برباد کر، ایسی آیت نازل کی۔ یہ کہا بددعا نہیں کرنا، ایسے نہیں۔ اللہ نے کہا لعنہ اللہ، خدا کی لعنت ہو، کیسے کرتے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے، ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ جی السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے، اگر سے کوئی عورت مری ہوئی، انتقال ہوا ہے، یہ ہمیں جاننا ہے کہ وہ
مسلمان ہے یا ہندو ہے یا کرسچن تو کیسے جانیں؟ اس کا آگے بھی نہیں ہے کوئی بھی پیچھے بھی نہیں ہے، ایسا عورت آسمان سے اگر گر کر مری ہے تو معلوم نہیں ہوتا، اس بستی میں 2 دن 3 دن 4 دن ملے تو معلوم ہو جاتا یہ کون عورت مری ہے، ہندو ہے مسلمان ہے کیا بھی ہے۔ اگر کوئی ہوائی جہاز سے گر کر مری ہے، آسمان سے گر کر مری ہے، معلوم نہیں ہے، آپ کا فریضہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس مسلمان کو آپ جانیں کہ صاحب فلاں ہے تو اس کو چھپانا ضروری ہے، نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے، نہلانا ضروری ہے، دفن کرنا۔ کچھ بھی نہ ہو، انسان کی لاش ہے، لے جا کے اس کو بھی دفن کرنا ضروری ہے، ہندو مسلمان ہو عیسائی ہو۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی سے کہا جاؤ جی تمہارے ابا کو گڑھا کھود کے گاڑو، دفن کرنے کے لیے کہا۔ انسان کا ایک احترام ہے، وہ ہندو ہو مسلمان ہو کچھ بھی ہو، لیکن مسلمان کے لیے نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفن دیں گے، نماز پڑھیں گے، دفن کریں گے، اور یہ کافر کے لیے نان مسلم کے لیے گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دیں گے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ باقی یہ کوئی عورت یا کوئی مرد کچھ بھی نہیں معلوم کون ہے، یہ تو ذرا تعجب کی بات ہے۔ اگر ویسے واقعہ پیش آئے تو پھر اس وقت فون کر کے آپ میرا فون نمبر لے لیجئے، فون کیجئے، جب جو جواب سمجھ میں آئے گا میں دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ سوالات ختم ہو گئے، بہت مختصر سوالات تھے۔ میں نے ایک تقریر میں سنا کہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ سورہ کہف تلاوت اسلام کی اطاعت میں بوڑھا ہوا۔ پتہ نہیں کیا سوال ہے۔ فجر کی نماز پابندی سے پڑھا، سورہ کہف ہمیشہ تلاوت کرتا رہا، اسلام کی اطاعت میں رہا، اسی میں بوڑھا ہو گیا، کیا 3 چیزیں قیامت میں نور بن کے آئیں گی؟ ہر نیکی کا ثواب ہے۔ فجر کی نماز جو پڑھے گا یقیناً اس کی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے کہا منافقوں کے لیے فجر کی عشاء کی نماز بھاری، جو بھی آدمی عشاء کی یا فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے سمجھنا چاہیے کہ میں آدھا پونا منافق ہوں۔ فجر کی نماز اذان ہوئی، اٹھے گئے نماز پڑھ لیا تو الحمدللہ۔ تو لہٰذا فجر کی نماز میں سستی کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ باقی سورہ کہف کی تلاوت اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور اسلام کی اطاعت تو ہر معاملے میں کرنا چاہیے۔ باقی نور بنے گا کیا بنے گا ایسے نہیں آیا، البتہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے لیے آیا کہ یہ دونوں صورتیں کثرت سے پڑھا کرو، یہ دونوں صورتیں تمہارے لیے سایہ دیں گی، روشنی بنیں گی اور تمہاری رہنمائی کریں گی۔ اس کا سیکھنا خیر و برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور تباہی اور افسوس ہے، یہ فرمایا۔ جی ہاں، سوال چونکہ واضح نہیں ہے اس لیے میں نے ایسے اس کا جواب دیا۔ سوال کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ جان لیں۔ السلام علیکم صاحب ایک مرتبہ گئے تقریر میں، لوگ سوال کرنا شروع کر دیے، اب اس کے بعد جو سوال کرے گا ایک سوال کا 50 روپیہ، پھر اس کا تو کوئی سوال آیا ہی نہیں۔ تو میں اعلان کرتا ہوں بھائی کوئی سوال کا کوئی فیس نہیں ہے، آپ جو چاہیں جو معلوم نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں سوال۔ اللہ کے پیارے رسول کے زمانے میں ایسے بھی ہوتا، کوئی آدمی ہے اس کو ایک بیماری ہے، وہ اگر پوچھے گا کہ صاحب مجھے یہ بیماری ہے تو لوگ سب دیکھیں گے ارے یہ بیماری ہے کیا، اس لیے دوسرا آدمی پوچھتا ہے اگر کسی کو یہ بیماری ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور، بڑے قوت والے، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی ان کو مزی نکلتی تھی، یعنی نوجوان جب رہتا ہے اس کو خواہش ہوتی ہے بیوی کی یا صحبت کرنے کی، یا کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے کوئی اس طرح کی سینری آئی جیسے پڑھنے والے ناول افسانے ہوتے ہیں نا، تو ایک جوش آتا ہے، تو پیشاب کی جگہ سے سفید پانی نکلتا ہے، ایک قطرہ وہ گون کی طرح ہوتا ہے، ایک یا 2 قطرہ نکلتا ہے، اس کو مزی بولتے ہیں۔ جب نکلے حضرت علی نہائے، صاحب صبح میں نہاؤ، دوپہر میں نہاؤ، گرمی کے دنوں میں نہاؤ، سردی کے دنوں میں نہاؤ، کتنا نہائیں گے؟
एक दिन में 10 बार निकलता, 5 मरतबे निकलता, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल ससरे भी हैं, कैसे पूछें? इसलिए मिक़दाद से कहा एक दूसरे साहबी, भाई जाके अल्लाह के रसूल से फतवा पूछो, नौजवान को मज़ी निकले तो क्या करना? उन्होंने जाके पूछा अल्लाह के प्यारे रसूल से, अल्लाह के रसूल नौजवानों को मज़ी निकले तो क्या करने का? कहा पेशाब की जगह को धो लेने का, वज़ू कर लेने का होता ही। हाँ, हज़रत अली उसके बाद नहाना छोड़ दिए, मालूम है कि हराम की चीज़ मिली। लिहाजा कभी ऐसे भी होता है कि दूसरे के लिए आप सवाल कर सकते हैं, उनको आराम पहुंचाने के लिए, उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए, उनकी शर्म को दूर करने के लिए, ऐसा भी होता है कभी कभी। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि इंडिया का माहौल है, इंडिया के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है और कॉलेजेस वगैरह में हिंदुओं और गैर मुस्लिमों की आबादी होती है, अक्सरियत उनकी होती है। तो इस माहौल में मुसलमानों के उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ात होते हैं, तो क्या कोई मुसलमान हिंदू के सिलसिले में अपने दिल में मोहब्बत रख सकता है? अगर मोहब्बत रखना जायज़ है तो किस हद तक रख सकता है? मेरा दूसरा सवाल ये है कि ऐसे कॉलेजेस के माहौल में हिंदू musulमानों को सलाम करते हैं, क्या हिंदू के सलाम का जवाब देना जायज़ है या फिर हिंदू को सलाम करना जायज़ है? अस्सलाम वालेकुम। एक है किसी से मोहब्बत करना, किसी को चाहना, सारे इंसानों से मोहब्बत करें, ये ना देखें किस में क्या है, उसके साथ दोस्ती है, कारोबार के ताल्लुक़ात हैं, उससे आप ख़रीदते हैं, बेचते हैं, करते हैं, ये सब एक मोहब्बत की ताल्लुक़ है। लेकिन ऐसी मोहब्बत ना हो जाए कि साहब मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलने के लिए तैयार, फलां के लिए, यानी उसकी दोस्ती ऐसी दोस्ती कि साहब सबसे ऊंची दोस्ती, इस दोस्ती से कुरान ने मना किया। सहाबा भी ऐसे नहीं थे कि साहब अपने काफ़िर रिश्तेदारों से ऐसी मोहब्बत करें, इस्लाम की बात, राज की बात, कोई भी बात उनको बताएं, इस्लाम के मुतल्लिक़ तनक़ीद करें, ऐसे नहीं। ताल्लुक़ रखने के लिए अल्लाह के प्यारे रसूल के ताल्लुक़ात सबके साथ थे। मक्की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल के साथ कितने काफिरों के ताल्लुक़ात थे। यहूदी दावत दे तो कबूल करते, काफिर भी दावत दे तो आप कबूल करते, उनके घर में जाकर खाते। लिहाजा ताल्लुक़ात हमारे अच्छे होने चाहिए। इन ताल्लुक़ात को दीन को बताने समझाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये पूरी बात है कि किसी आदमी से हमारे ताल्लुक़ात हों, किसी हिंदू से बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं, एक दिन भी इस्लाम की बात नहीं बताते, एक दिन भी उसके मुतल्लिक़ सोचते नहीं कि साहब हम दोनों यहाँ दोस्त हैं, क़ियामत में जहन्नम में जाएगा, मैं जन्नत में जाऊँगा, मेरे भाई से मोहब्बत है तो मुझे चाहिए उसको इस्लाम बताऊं, दीन बताऊं, हो सकता है कि मेरी वजह से वो इस्लाम कबूल कर ले, हम दोनों ही जन्नत में जाएंगे ना। अपने ताल्लुक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर हमको चाहिए कि सब दावा का काम लें, दावत दें। ताल्लुक़ात सबसे अच्छे रखने चाहिए, साहब कोई भी हो, किसी भी दीन का हो, लेकिन उसका एक लिमिट होती है। जैसा कि मैंने बताया, उससे ताल्लुक़ात मोहब्बत की वजह से आपको बुलाए, वो फूल लेकर आ, पूजा करने जा, हाँ लेकर आता हूँ साहब, मोहब्बत भाई, उन्हें पूजा करे तो उन्हें करता, फूल ले जाको मैं दिया, अरे अल्लाह के बंदे वो पूजा का फूल क्यों ले जाके तू देता है भाई? बाकी कारोबार है, ताल्लुक़ात हैं, वो सब तुम्हारी मोहब्बत होनी चाहिए। बाकी ये रहा सलाम करना या सलाम का जवाब देना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फ़िरौन से, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती अल्लाह की उसके लिए जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह पर ईमान लेता है, अल्लाह की सलामती की दुआ देता है, अल्लाह ही को नहीं मानता, अल्लाह की इबादत नहीं करता है तो क्या करेंगे? इसी तरह अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ुतूत लिखते थे गैर मुस्लिमों को, उसके अंदर यही लिखते थे, हिदायत कबूल करने वाले पर सलामती, ये नहीं लिखा अस्सलामु अलैकुम। अलबत्ता मजलिस मिली जुली है तो ऐसी सूरत में अस्सलाम अलैकुम भी ठीक है, वालेकुम अस्सलाम भी ठीक है। अगर वो भी हमको सलाम करते अस्सलाम अलैकुम, सलाम कह देना चाहिए, या कह दिया चाहे ठीक है, या कह दिया अलैकुम, इसका सबूत मिलता है। इसलिए आप अल्लाह को ही नहीं मानते, अल्लाह की सलामती की दुआ ना ले सकते ना दे सकते, अल्लाह को मान लीजिए तो फिर आपको सभी कहें अल्लाह की सलामती हो, आपको खुशी होगी, वरना को आपको तो रंज होगा। मैं कहूँगा कि अल्लाह की सलामती, तो इसलिए हदीस के अंदर ये बात बताई गई है कि तुम उनको सलाम ना करो और उनके सलाम का जवाब भी ना दो। लेकिन दूसरी हदीस में आया कि वो सलाम करें तो अलैकुम कहो, ये अहले किताब के लिए आया, उसी के साथ दूसरों को भी हम समझते हैं कैसे करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरा सवाल है जो 21वीं सदी के दौर में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से जो है बढ़ती जा रही है, इस दौर में जो है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करना और जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, ये जो है काफ़ी हद तक जो है माहौल को मुतासर कर रहा है, और इसके बारे में आपका क्या जवाब है? और मेरा दूसरा सवाल है कि कोई भी शख्स जो साइबर नेट है, इंटरनेट की फैसिलिटी के तौर पर जो बिज़नेस करते हैं, वो क्या जायज़ है या कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि उसके अंदर जो कई चीज़ें अच्छे भी होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं, इस लिहाज से मैं आपसे जवाब तलब कर रहा हूँ। घरों में चाकू रखना, साहब प्याज भी काटेंगे, कोई बच्ची गर्दन भी काट लेगी ना, उसकी वजह से चाकू रखना बंद नहीं करते। घर में करंट है, उसमें हाथ लगा के बच्ची बैठ जाएगी, बच्चा बैठ जाएगा, मर जाएगा, उसकी वजह से कोई आदमी घर से करंट नहीं काटता। लिहाजा इंटरनेट हो या कि मोबाइल फ़ोन हो, ये सब फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आप अपने बच्चों की तरबियत करें इस तरह कि साहब उसको सिर्फ जायज़ कामों में इस्तेमाल करें, वरना तो बच्चे और बच्चियों का हाल ये है, सोने के बाद जब सर घर में सो जाते हैं उस वक्त इनकी गुफ्तगू अपनी महबूबा से शुरू होती है, या महबूबा इनसे बात करना शुरू करती है, या फिर लेट्रिन जो कि शैतान की जगह, वहाँ बैठ के दोनों बात करते रहते हैं। ये सब मुसीबत बलाएं हैं। इस्लामी तरबियत अगर दें, आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो बहरहाल उससे फ़ायदा होगा। इस्लाम तो ये कहता है कि जिसका भी नुकसान ज़्यादा हो और फ़ायदा कम हो तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। शराब इसलिए हराम है, जुआ इसलिए हराम है, नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। 1000 आदमी टिकट खरीदते हैं, 999 आदमी का पैसा गया, एक आदमी को सबका पैसा मिल गया, तो लिहाजा नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा एक आदमी को हुआ, नुकसान हुआ 999 आदमी को। ऐसे ही फ़ायदा अगर नुकसान ज़्यादा है तो उसका इस्तेमाल बंद। आपकी बच्ची के मुतल्लिक़ मालूम हुआ मसलन कि आपकी बच्ची गलत इस्तेमाल करती है, सेल छीन लीजिए, मत दीजिए उसको और उसके पास निगरानी रखिए। ये मत कहिए कि दुनिया में सेल जितने सब फाड़ दो, तोड़ दो, जला दो, ऐसा मत कहिए। फ़ायदा बंदों को बहुत होता है। और इसी तरह जो बिज़नेस और कारोबार किया जाता है उस सिलसिले में भी कहना यह है कि साहब बहुत सारे गलत कारोबार का भी उससे रिवाज होता है। इंसान के अंदर कारोबार करने के लिए कुछ शुरूत बताई गई हैं कि जो चीज़ आप ख़रीदने चाहते हैं बेचने वाले के पास वो चीज़ होनी चाहिए। जो चीज़ आप ख़रीदना चाहें उसका रेट फ़िक्स होना चाहिए जब ख़रीदना चाहते हैं। ख़रीदने के बाद आपको उसके वापस करने का हक़ भी इस्लाम देता है, एक लिमिटेड पीरियड के अंदर, जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन हो सकती है। ख़रीदी हुई चीज़ के अंदर कोई भी आयब निकला तो उसी वक्त उसको वापस कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी सहूलतें ख़रीदने बेचने के लिए हैं। बाकी जो बिज़नेस इंटरनेट से इससे होता है उसमें लॉटरी की तरह का मसला होता है, धोखा बहुत होता है। इसलिए आदमी को बिज़नेस करने के लिए हलाल और जायज़ जो सूरत है उसको इख्तियार करना चाहिए। यही मेरी समझ में बात आती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कुरान पढ़ाने वाले फ़ीस लेकर पढ़ाते हैं, क्या कुरान पढ़ाने के लिए फ़ीस लेना जायज़ है क्या? हम कहेंगे जायज़ ना जायज़ की बात बाद में करेंगे। आप अपनी बेटे को कुरान क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आप पढ़ाइए ना। ये मौलवी साहिबान जो कुरान पढ़ाते हैं, हम कहें साहब फ़ीस नहीं लेना, तो क्या खाएंगे? वो घास तो नहीं चर सकते, और घास चरने के लिए भी शहर से बाहर जाना पड़ेगा। बेंगलुरु में तो घास भी नहीं है। पार्कों में घास चरेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि हम तो प्लांटेशन करते हैं और तुम घास चरते हो क्या? क्या खाएंगे लोग, क्या पिएंगे? तो लिहाजा कुरान पढ़ाने वाला कोई फ़ीस लेता है अपने बच्चे की, अपना टाइम देता है, वक्त देता है, आपके घर को आकर आपकी बच्चे को कुरान पढ़ाता है, तो क्या करेगा फ़ीस नहीं लेगा तो? इसलिए आप अगर फ़ीस समझते हैं हराम है, नाजायज़ है, आप खुद पढ़ाइए अपने बच्चे को। आपकी बीवी पढ़ाए तो मालूम यह हुआ कि साहब हम अगर ये फतवा दे दें कुरान पढ़ा के फ़ीस लेना हराम है, कुरान पढ़ना ही लोग बंद कर देंगे और साहब वो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जो आदमी के कुरान की उजरत लेता है,
सिखाने की, उसके लिए हदीस में मजम्मत आई। गालिबन हज़रत साद का वाक़या या हज़रत मुआज़ साद इब्न मुआज़ का वाक़या है। उन्होंने एक आदमी को कुरान पढ़ाया, उसके बाद उसने तोहफे में ये कमान देने चाहिए, तीर कमान है ना, तोहफे में देना चाहिए। उसकी कीमत बहुत थी उस ज़माने में, बहुत मुफीद चीज़ थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल मैंने फ़लाँ आदमी को कुरान पढ़ना सिखाया, वो मुझे ये कमानी देना चाहता है। कहा ठीक है ले लो, जहन्नम की एक कमानी है, वो आग की है, वो जहन्नम की आग। अच्छा नहीं ली। तो इसका मतलब लोगों ने ये लिखा है कि साहब जिस आदमी के लिए कुरान पढ़ाना ज़रूरी है वो कहता है मैं नहीं पढ़ाता, जाओ पैसा दोगे तो, उस आदमी के लिए है। लेकिन जहाँ कई आदमी कुरान पढ़ा सकते हैं उसमें से एक आदमी से आप जाकर कहते हैं आप पढ़ाइए, तो फीस दीजिए उसकी। तो लिहाजा आदमी अगर मुस्तगनी है, अल्लाह ने दिया है, सब कुछ है, फ़ीस नहीं लेनी चाहिए, मुफ्त में पढ़ाना चाहिए। हमारे बहुत सारे उलमा ने ऐसे ही पढ़ाया है, एक पैसा नहीं ले, बल्कि उनके घर में जाकर चाय भी नहीं पीते थे। अब ज़माना वैसा नहीं ना रहा। अगर हम कहें कुरान पढ़ा के फ़ीस लेना हराम है तो फिर कल से ही परेशानी शुरू हो जाएगी। सारे लोग बिस्तर बांध के चले जाएंगे, बिहार को भी, झारखंड को भी, यूपी को भी, इधर उधर चले जाएंगे और कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा बेंगलुरु में, फिर क्या होगा। तो लिहाजा ज़रूरतमंद अपने वक्त देने की वजह से वो फ़ीस ले सकता है, लेकिन इतनी फ़ीस ले कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, हिर्स हवस के लिए ना ले। आजकल मामला ऐसा है कि साहब मैथ्स, साइंस, इंग्लिश सिखाने वाला जब ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है, माँ भी तैयार, बाप भी तैयार, बेटा भी तैयार, नहला के धुला के, चाय भी इंतज़ार करती है, बिस्किट भी इंतज़ार, यस प्लीज़ कम, प्लीज़ सिट। हाँ साहब सब हुआ, और फीस भी 1 घंटा पढ़ाया, 2000 रुपये महीने की फ़ीस। मौली साहब आए हैं तो माँ सोती रहती है, बेटी भी सोती रहती है, शौहर रे मौली आया देख, मौली आया देख, उन्हें कुरान पढ़ने वाला आया देख, जा पढ़ लगा जा। हाँ मैं जाती नहीं, नींद आती। मौली साहब कल को पढ़ाओ हमारे बच्चे को, बासी चाय रहेगी वो पीने देंगे। क्या कदर है कि कुरान पढ़ाने वालों की, ये मुसीबत है मुस्लिम कौम की, कुरान पढ़ाने वालों की इतनी इज्जत हो गई है इस ज़माने के अंदर। ऐसे सब है मेरे भाइयों, इसलिए फतवा दे दे के हम लोग को नहीं चाहते कुरान पढ़ाना बंद कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। फज़ीलत शेख, मेरा भी सवाल इंटरनेट के रिलेटेड है। आजकल वो फेसबुक नाम के जो वेबसाइट है जहाँ पे हम बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो फेसबुक के ज़रिए दीनी बात फैलाते हैं, लेकिन हाल ही में फेसबुक पे एक कंपटीशन आया है कि रसूलुल्लाह सल्लम के कार्टून छुड़ाओ करके। तो इस बात पे गुस्सा हो के पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फेसबुक को बैन कर दिया है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने फेसबुक को बैन कर दिया है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हम मुसलमानों को इस मसले में क्या करना चाहिए शेख? इस्लाम का एक उसूल है, अच्छे काम में साथ दो, बुरे काम में किसी का साथ ना दो। लिहाजा आपको मालूम हो गया कि हर अच्छा काम जिसमें आप ताउन कर सकते हैं, व ताउनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, सूरह माइदा में अल्लाह ने फरमा दिया जो भी नेकी का काम है, अच्छा काम है, उसकी खिदमत करो। जो भी बुराई गलती के लिए बुलाते हैं उसका साथ ताउन ना करो। लिहाजा इतनी वाज़ेह बात है, कोई गवर्नमेंट बंद करे ना बंद करे, आपका ज़मीर क्या कहता है? आपका ज़मीर कहता है ये काम हराम है तो इसके अंदर हम इस काम को नहीं करेंगे, उसकी वजह से बंद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसको बंद करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शेख, 2 सवालात हैं मुख्तसर से। एक सवाल ये है कि गैर मुस्लिम की होटलों में खाने के बारे में अक्सर 2 राय पेश करते हैं उलमा इकराम। कुछ उलमा इकराम कहते हैं कि खाने से परहेज़ करना चाहिए और कुछ कहते हैं कि खा सकते हैं, जायज़ है। बराए मेहरबानी जो है आप इसकी वजाहत करें। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आज कुछ उलमा इकराम, मौलवी साहिबान कुरान की तावीज़ें बनाकर लोगों को बेचते हैं, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये इस तरह हदिया लेते हैं। क्या इस तरह से कुरान को लिखकर तावीज़ की शक्ल में बेचना जायज़ है या हराम है? तावीज़ बेचना, बनाना, लटकाना सब नाजायज़ है। वो कुरान से बनाए, हदीस से बनाए। जो आदमी तावीज़ लटकाता है उसी के हवाले कर दिया जाता है। ये तावीज़ की हदीसों पर अगरचे के मुहद्दिसीन ने कुछ कलाम किया, लेकिन मजमुआ तो ये बताता है कि तावीज़ बनाना, लिखना, देना, बांधना ये सब चीज़ें नाजायज़ हैं। रहा
عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو جن کو دعائیں یاد نہیں ہوتی تھی لکھ کر گلے میں لٹکا دیتے تھے. اب کیا لٹکاتے تھے اللہ کو معلوم، لیکن ایک صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تو تعویذ پہننے سے منع کیا. جب تعویذ پہننا منع ہے تو بنانا بھی منع ہے، لہٰذا قرآن کی تعویذ بنانے سے جواز نہیں ہو جاتا ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. یہی صحیح فتویٰ اس سلسلے میں ہے. اب رہا ہندوؤں کے ہوٹل میں کھانا پینا جائز ہے کیا؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ صاحب جائز ہے نہیں ہے. جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے اس کی وجہ کیا ہے. کہیں گے کہ وہ گائے کا پیشاب ملاتے ہیں، سامبار میں اڈلی میں گائے کا پیشاب ملاتے ہیں، تو گائے کا پیشاب ملا دیے اس کی وجہ سے حرام نہیں ہو جاتا ہے. جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس جانور کا پیشاب پاک ہوتا ہے. اللہ کے پیارے رسول نے بیمار صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹنی کا پیشاب بھی دودھ بھی ملا کر پیو، تندرستی ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کے اندر شفا نہیں رکھی ہے، لہٰذا گائے کا پیشاب بھی حرام نہیں ہے. کوئی اگر اڈلی سامبار میں ڈالا تو اس کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہو جاتے. کیا وجہ ہے دوسری؟ اگر وہ کہے کہ صاحب ان کے یہاں کھانا پینا، ان کی ہوٹل کو ترقی دینا ہے، فلاں ہے، یہ سب کوئی بات نہیں ہے. آپ ہندو کے ہوٹل میں ضرورت کے لیے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. ایک آدمی کے جیب میں 10 روپیہ ہی ہے، اگر وہ کسی پایا کی دکان میں گھس جائے گا تو اس کو قمیص سب نکال کے دینی پڑے گی. پایا کھانے کے بعد وہ جا کے 2-3 اڈلی کھا کے باہر آ جائے گا تو صاحب اس کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو لہٰذا اب کیوں منع کرتے ہیں، اس کی کوئی ریزن بتائیں تو ہم بتائیں صاحب حلال ہے کہ نہیں حلال ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ہم ضرورت پر کھاتے ہیں، بلکہ کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ صاحب کہیں بھی سفر پر جائیں تو جو اڈلی ڈوسے کی ہوٹل ہے وہاں کھائیں. گوشت کے متعلق بڑا شبہ ہوتا ہے، مری ہوئی مرغی ہوگی، جھٹکے کی مرغی ہوگی، جھٹکے کا بکرا ہوگا، پتہ نہیں کس نے ذبح کیا ہو گیا، بڑا سب ہے. اس لیے بغیر اس کے گوشت کے آدمی کھا پی کے نکل جاتا ہے. ہم تو اکثر ٹرین میں اور سب سفر میں اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ سب ویجیٹیرین کھائیں. اس کا ہم خیال کرتے ہیں. ہمارے لیے حرام کی کوئی دلیل ہم کو سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے پیارے رسول کو بھی ایک پارسی آدمی نے دعوت دی جو کہ گوشت کا کاروبار کرتے تھے. اللہ کے رسول نے اس کی دعوت کو قبول کی. ہاں یہ انگریزی میں، اردو انگریزی میں لکھے ہیں. السلام علیکم. یہی کیا ہے؟ نہیں یہ کچھ دوسرا ہے، یہ دوسرا ہے. دن رات میں کتنی نفل ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ فرض نماز کے بعد جو نمازیں ہیں ان کی تقسیم ہوتی ہے سنت مؤکدہ اور واجب. بعض اہل حدیث علماء واجب کو بھی کہتے ہیں. عید کی نماز واجب، سنت مؤکدہ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 2 یا 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ. کبھی مدینے میں رہ کر اللہ کے رسول یہ نماز نہیں چھوڑے، ہمیشہ پڑھتے رہے. تو یہ 10 یا 12 رکعت دن میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے محل بنائے گا. نفل نماز اشراق کی نماز، سورج نکل کے 15 منٹ کے بعد آپ پڑھیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں. 360 صدقہ کرنا ضروری ہے، وہ 2 رکعت سے ہے. نفل نماز سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا اللہ کے دربار میں. چاشت کی نماز 10-11 بجے، وہ بھی نفل نماز. تحیت الوضو وہ بھی نفل نماز. اس طرح جن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے اس کے علاوہ جتنی نماز چاہیں ان وقت میں چھوڑ کر آپ پڑھ سکتے ہیں دن میں رات میں. تہجد کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ 8 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھے، یہ حدیث میں آیا. لہذا بہتر ہے کہ آدمی اتنی ہی نماز پڑھے. لیکن جن لوگوں نے اللہ کے رسول سے آ کر پوچھا رات کی نماز کے لیے، اللہ کے پیارے رسول نے پایا 2 رکعت کر کے پڑھو. صبح ہونے کا وقت قریب ہو تو 1 رکعت پڑھ لو وتر. تو یہ نہیں بتا 8 ہی پڑھو، 6 پڑھو. اس لیے اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے زیادہ بھی تو ٹھیک. لیکن ہم نے دیکھا کہ رمضان میں اللہ کے پیارے رسول نے 3 راتوں 8 رکعت پڑھی
اور ہمیشہ 8 رکعت پڑھتے تھے. حضرت عائشہ نے بھی بتایا کہ اللہ کے رسول 8 سے زیادہ نہیں پڑھے، اس لیے تہجد اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق 8 رکعت ہوتی ہے. السلام علیکم شیخ. ابھی جو سوال ہوا تھا غیر مسلموں کی ہوٹلوں میں کھانے کے تعلق سے، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو لوگ اس سے منع کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ غیر مسلموں کی ہوٹل میں بتوں کی پوجا ہوتی ہے اور وہ لوگ کھانا بنانے کے بعد جو بھی پکوان کی چیزیں بناتے ہیں اس کی بھی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پوجا ہوتی ہے اس لیے کھانا منع ہے. ایک اور سوال شیخ ہمارے ایک محترم نے پوچھنا چاہتے ہیں، نکاح کا کھانا، اسی طرح برتھ ڈے پارٹی کا کھانا اور اسی طرح کی جو دوسری دعوتوں میں جو کھانے ہوتے ہیں ان کا کھانا کیسا ہے؟ رہ گیا غیر مسلموں کو ہوٹل میں کھانے کی پوجا ہوتی ہے. اب یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہندوؤں کے بھومی پوجا ہوتی ہے. وہ کھیت جب بوتے ہیں تو پوجا کر کے دھان بوتے ہیں. اب ہم کہیں کہ صاحب دھان لینا حرام ہے اس لیے کہ وہ پوجا کر کے دھان بوئے ہیں، یہ مشکل ہو جائے گا، ہے نا. البتہ کوئی آدمی فاتحہ پڑھا ہے بوندی فلاں، ہم اس کو حرام نہیں بولتے، کہ یہ بدعت ہے، اس کی وجہ سے وہ کھانا حرام نہیں ہو جاتا. یہ پوجا کرتے ہیں، اب وہ ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں بھائی. کس کس کی پوجا کرتے ہیں؟ سانپ کی پوجا کرتے ہیں، چوہے کی پوجا کرتے ہیں، سب کی پوجا کرتے ہیں. کھانے کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں معلوم. البتہ یہ ہے کھانا پکانے کے بعد اڈلی بنا کبوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب کبوں کو پہلے اڈلی کھلانے سے برکت ہوتی ہے، ایسا ان کا عقیدہ ہے. تو لہٰذا حدیث کے اندر تو یوں کہا گیا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں ڈاؤٹ ہو چھوڑو جی اسے. بازو دوسری ہوٹل لینا، 4 مینار ہوٹل، وہاں جا کے پایا کھاؤ. تو آدمی کو شبے کی چیز کو چھوڑنا چاہیے، حلال کھانا چاہیے. آپ کی طبیعت میں اس طرح ہے تو صاحب اس کو چھوڑیے. یہ تو دور کی بات ہوئی نا. میں آج ہمارے کلیت الحدیث کے بچوں کو پڑھا رہا تھا، دلوں کو بگاڑنے والی چیز میں پہلے کھانا. آدم علیہ السلام کیا گناہ کیے؟ کھانے کا گناہ کیے. شیطان سب سے پہلے کھلا کر ہم کو تباہ کرنا چاہتا ہے. آج دیکھیے ہم اچھے خاصے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، کیا کیا کھاتے ہیں؟ بسکٹ لاؤ جی، کراک جاگ بسکٹ لاؤ، کراک جاگ بسکٹ لائے، کھائے، بڑا مزیدار تھا. پڑھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں سور کی چربی ملائے ہیں. فلاں بسکٹ لاؤ، معلوم اس میں سور کی چربی ہے. فلاں چیز لاؤ، اس میں معلوم سور کی چربی ہے. وہ چکن 65 بنائے، بہترین پاؤڈر ڈالے، بہترین مزہ آیا. معلوم ہوا کہ مرے ہوئے مردے کی ہڈی کا پاؤڈر اس میں ملا ہوا ہے چکن 65 کے مسالے میں، لال رنگ کے مسالے میں. حرام 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 حرام. جتنا بچ سکے آدمی اتنا بہتر ہے صاحب. مجبور ہے تو جا کے کھائیے، ورنہ مت کھائیے. آپ کا دل جو گواہی دیتا ہے وہیں آپ کھائیے، وہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور ایک سوال انہوں نے کیا تھا، اور ایک سوال آپ کا تھا میرے خیال میں، نکاح کی دعوت. ہمارے متعلق یہ ہے، نکاح کی دعوت آدمی خوشی سے کرتا ہے، بغیر کسی مجبوری کے، ڈر کے بھی نہیں کرتا ہے. آپ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں، نکاح کی دعوت. یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ اس مسئلے کو ہم جائز سمجھتے ہیں. نکاح کے دن کھانا کھلانا، اگر کسی نے کمپل کیا ہے، وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں کھلاؤں گا تو کیا بولیں گے، ایسا کھانے کے تعلق سے معلوم ہو تو ہرگز اس کی دعوت مت قبول کیجیے. تو لہٰذا شادی کی دعوت جو خوشی میں کوئی کرنا چاہتا ہے تو کرے. بیٹی کی شادی ہوتی ہے، بیٹے کی شادی ہوتی ہے کہ کھلانا چاہتا ہے، بیٹے کا تو ولیمہ بھی ہو سکتا ہے. بیٹی کی شادی میں بغیر کسی کے خوشی میں کھلانا چاہتا، ہم اس کی دعوت کو جائز سمجھتے ہیں. امتحان میں پاس ہوا تو ٹی پارٹی کرتا ہے، اور کوئی سروس ملی تو پارٹی کرتا ہے. لہٰذا جس میں حرام کا پہلو نہ ہو وہ دعوت قبول کرنا آپ کے لیے جائز ہے. میں اس کو برا نہیں سمجھتا، غلط نہیں سمجھتا ہوں، میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. البتہ مجبوری کی دعوت، بدعت کی دعوت اور صاف اس طرح کی دوسری ناجائز دعوت، اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے رسول کے صحابہ کے دور میں ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی ختنہ کی دعوت کی. صاحب آج ہمارے بچے کی ختنہ ہے، اگر آپ کھانا کھائیے. کہا اللہ کے رسول کے زمانے میں ختنے کی دعوت نہیں تھی، تو لہٰذا میں نہیں آتا.
अब इसको रखकर हम ये नहीं कर सकते कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कितनी दावत थी कि उसके अलावा पूरी दावत हराम है, ये तो हम नहीं कर सकते। उस ज़माने में एग्ज़ाम भी नहीं था, इम्तिहान भी नहीं था, पीयूसी भी नहीं था, ये भी नहीं था, पास भी नहीं था, इम्तिहान में रिज़ल्ट भी नहीं आता था। कोई दावत करना चाहता है, इम्तिहान में पास हुआ तो हम कैसे कहें साहब उसके अलावा कोई दावत नहीं है? तो नहीं, जलसे के लिए भी ऐसे दारुस्सलाम बिल्डिंग में नहीं होते थे जलसे। अल्लाह के रसूल के ज़माने जैसे प्रोग्राम है मस्जिद में वैसे ही करना, कुर्सी में बैठना, दारुस्सलाम में प्रोग्राम करना, लोगों को जमा करना और साहब वो स्पीकर इस्तेमाल करना, ये सब हराम है। कैसे फतवा दें भाई? ऐसे नहीं दे सकते। लिहाजा हम निकाह की दावत को अगर कोई आदमी अपनी खुशी से किसी को खिलाना चाहता है उसको हम नाजायज़ नहीं समझते हैं। सफ़र में कौन सी सुन्नत है? फजर की सुन्नत और वितर पढ़ना, बाकी जो सुन्नत मौक़दा वो नहीं पढ़ी जाती है। नफिल नमाज सफ़र में पढ़ सकते हैं। जो सुन्नत पाबंदी से 10-12 रकात पढ़े उसमें सिर्फ फजर की 2 रकात और वितर, ये अल्लाह के रसूल सफ़र में पढ़े हैं। सफ़र हज़र में फजर की सुन्नत नहीं छोड़ते थे। बाकी ज़ोर से पहले बात की, मगरिब के बाद की, इशा के बाद की पढ़ने का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा ये सुन्नतें हैं। और मैंने ये भी कहा नफिल नमाज कार में बैठ के, साइकिल में बैठ के, टू व्हीलर में बैठ के आदमी पढ़े, लेकिन एक्सीडेंट ना हो इसका ख्याल करे भाई। माँ बाप की नाफरमानी गुनाह और एहसास और एहसास भी है मगर छोड़ नहीं रही है, नसीहत करें। माँ बाप की नाफरमानी गुनाह है और एहसास भी है, ये क्या मतलब? माँ बाप की नाफरमानी करना, वो हिंदू हो, ईसाई हो, बुत परस्त हो, माँ बाप की नाफरमानी जायज़ बातों में नहीं करनी चाहिए। खाना मांगे, पानी मांगे, कपड़ा मांगे, बदन दबाने के लिए बोले, रोज़ आके मेरा बदन दबाओ, सर दबाओ, सब मानना, काफिर जब भी मानना। तो लिहाजा मुसलमान माँ बाप की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है, डरना चाहिए। और अल्लाह के प्यारे रसूल ने तो फरमाया कि सबसे जल्दी माँ बाप की बद्दुआ लगती है, लिहाजा उससे डरना चाहिए। तो माँ बाप की खिदमत करना और माँ बाप की दुआ लेना ज़रूरी है। जिसको एहसास भी है फिर भी नाफरमानी करते हैं माँ की, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उनसे अल्लाह से तौबा करना चाहिए, अल्लाह से तौफीक तलब करनी चाहिए कि साहब अल्लाह ताला ऐसे बड़े गुनाह से बचाए। हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। ये बिद्दत हुस्ना के बारे में क्या बोल सकते हैं शेख? क्योंकि एक टाइम ऐसे आर्ग्यूमेंट तो नहीं बोल सकते हो, माइक और जो पैंट शर्ट पहनते हैं ना हम, वो बिद्दत हुस्ना करके बोले। और दूसरी चीज़ आके ईद उल ज़ुहा पे भैंस की कुर्बानी दे सकते हैं क्या करके राय आपकी चाहिए? कुर्बानी के वक्त भैंस की कुर्बानी दे सकते क्या? जहाँ गाय की पाबंदी है, गाय ज़िबा नहीं कर सकते, वहाँ उलमा ने फतवा दिया है कि भैंस की कुर्बानी कर सकते। यूपी बिहार में जितने लोग हैं गाय की जगह भैंस ही काटते हैं कुर्बानी के मौके पर, और कहते हैं साहब इसका चमड़ा काला है, उसका चमड़ा गोरा उतना ही ना है, ये भी घास खाती, वो भी घास खाती, ये भी दूध देती, वो भी दूध देती, इसको भी 2 सींग है, उसको भी 2 सींग हैं। ऐसा करके उन्होंने कहा भैंस गाय की एक किस्म है, भैंस गाय की एक किस्म है, इसलिए फतवा दिया वहाँ के लोगों ने। लिहाजा कहीं ऐसी पाबंदी है तो मजबूरी में इंसान अगर ज़िबा करता है भैंस तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। आम तौर पर ऐसा है यूपी बिहार के अंदर हनफी उलमा, हनफी लोग कुर्बानी भैंस की करते हैं, अहले हदीस नहीं करते, कहते नहीं भैंस अलग ज़ात है और सब गाय अलग ज़ात है, लिहाजा गाय की जगह भैंस नहीं काट सकते। ऐसे उलमा में इख्तिलाफ है इस सिलसिले में। शेख और एक सवाल था, उनका इनशर्ट क्या कि इनशर्ट वगैरह कुछ कर रहे हैं, इनशर्ट या पैंट पहन के भाई, शर्ट पहन के या माइक यूज कर सकते हैं क्या करके पूछ रहे हैं। इनोवेशन बिद्दत, क्या माइक यूज करना बिद्दत है? नहीं ना, आवाज़ पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है। एक ज़माने में फतवा दिए थे उलमा हिंदुस्तान के
असली इमाम की आवाज़ नहीं, इसलिए माइक में नमाज़ पढ़ाना हराम है, ऐसा बोले थे इंडिया में, लेकिन अब कोई नहीं बोलता, सारी नमाज़ें माइक से होती हैं। तो माइक का इस्तेमाल करना हरगिज़ बिदअत नहीं है, बल्कि जो चीज़ किसी ज़रूरी काम के लिए इस्तेमाल की जाती है वो ख़ुद ज़रूरी हो जाती है, लिहाजा दूर तक लोगों की बात पहुंचाने के लिए माइक का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं बल्कि ज़रूरी हो जाता है। शेख, क्या पानी बेच सकते हैं? पानी का बिजनेस जो करते हैं, पानी बेच सकते हैं क्या? और दूसरा सवाल है कि आजकल हाइब्रिड फ्रूट्स के, अब जब आम की फसल आई है उसको जल्दी उगाने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं और उसको जल्दी उगा के बेचा जाता है, क्या ये जायज़ है? पानी जो सबके मुश्तरक ज़मीन में है उस पानी को बेचना हराम है। फ़र्ज़ कीजिए 10 घर हैं एक जगह, बीच में गड़ा है, बारिश भी, पानी जमा हो गया, आप जाकर बैठ गए डंडा लेकर, ये घड़ा पानी 2 रुपये, अरे वो 10 आदमी की ज़मीन है, 10 आदमी का घर है, वो तुम्हें कैसा बेच सकते हैं? हराम है। बाकी कोई आदमी बिस्लरी वाटर बेचता है, मिनरल वाटर बेचता है बाटल में रख के, उससे कहें सब पानी का व्यापार हराम है तो क्या करेगा? बिल्कुल गलत है। मुश्तरक पानी कोई कब्ज़ा करके बेचता है तो उसको हराम बताया गया। वही पानी घड़े का मुश्तरक पानी घड़े में भर के 2 किलोमीटर दूर जाके कोई बेचता है तो उसके लिए जायज़ है। आप डंडा लेके उसको अपना पानी समझते ना, वो गलत है, लिहाजा वो जायज़ नहीं है। बाकी ये रहा कि साहब वो लोग आजकल बहुत सारे नई नई तकनीक लाके बकरा जल्दी कैसे बढ़ाया जाए, मुर्गी जल्दी कैसे बढ़ाई जाए और सब फल जल्दी कैसे निकाला जाए, ये सब टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है हराम है, लिहाजा जल्दी उग जाने की वजह से कोई चीज़ हराम नहीं हो जाती है, जल्दी बढ़ जाने की वजह से कोई चीज़ हराम नहीं हो जाती है, इसका याद रखना चाहिए। हाँ, हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। हाज़रीन, हम जो है आपकी जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन जो है वक्त ना काफ़ी होने की वजह से हम सवालात का ये सिलसिला बंद करते हैं। बहुत सारे मकामी एतबार से बहुत सारे अहले इल्म मौजूद हैं, आप अपने सवालात को उनके पास रखें, इंशाअल्लाह आपको जवाब मिलेगा। अभी जो है जलसा इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोगों को ऐसे दीन और ऐसे इस्लाम का मानने वाला बनाया कि इंसान की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी मसला क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए से सारे मसाइल के सिलसिले में तशफ़ी बख्श बातें हमारे सामने जो अता की हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये शुक्र हमें अदा करना चाहिए। फिर मैं ख़ासकर हमारे सदर मोहतरम और मेहमान ने खुसूसी फ़ज़ीलत शेख अनीसुर्रहमान साहिब आज़मी उमर मदनी हफ़िज़हुल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मरकज़ुद दिरासत इस्लाम ICIS की दावत पर आपने लब्बैक कहा और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और दूसरे मुक़र्रिर फ़ज़ीलत शेख अब्दुल वकील साहब का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ। फिर इसके अलावा जो शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो हज़रात और ख़वातीन यहाँ पर आए हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मिल बैठने को, हमारे इसमें शिरकत करने को कबूल फ़रमाएँ और हमारे आमाल हसना में इसको दाखिल कर दे। जलसा ख़त्म होने से पहले ये भी बात आपके सामने रख दूँ कि यहाँ पर जो है नमाज का इंतज़ाम किया गया है। जो लोग इशा की नमाज़ नहीं पढ़े हैं वो इशा की नमाज़ बाजमात नमाज़ पढ़ करके जाएँ। इजलास ख़त्म होते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखलाई कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। check